matter of pride for all of us that respected Principal Sir will address the connected participants. The college principal, Dr. Bhavan Sharma, is a person of lofty ideals whose vision, knowledge, and wisdom is beyond words. May I request you, sir, to apprise all the admission seekers about the college. Over to you, sir, please. Thank you, Deepti. Can you hear me? So my voice. Sir, absolutely fine. Thank you so much. So first of all, I have to thank you people, DSW, Kiran Huda ma'am, Deepti ma'am, Navdeep ma'am, and Navneet Singh. So for organizing this virtual interactive session with the freshers, and we know that new academic session is going to unfold very soon. The results are already come out. So all these people, they have got a lot of expectations. They have been going through certain process of decision making, which is going to a very difficult one, tough one. We all know that these days are very tough because we people are not able to have a peep into the future. So we have got all kind of things haunting our mind. What do we do? Where do we go? Which institution do we choose? So what is good for us? What is going to be the future for us? So we have got all these questions, flooding the minds of the young students. So for that purpose, I think you people have been able to organize this, some kind of interactive session with the fresh admission seekers. So that's a great idea. And I am also happy that you have associated with this endeavor the presence of our alumni, which is really a very rare one, rich one. So we all know that this college has made tremendous contribution in the evolution of the nation, and that has been done through our students who have got out of this college. They have been serving the nation in different capacities, and the kind of contribution we have made, that is really immense, that is unparalleled in the history of education throughout India. So for that reason, associating those few people, four of them are, I think, they have joined in to share their views about this college, about the wider concept of education with the newcomers. So I welcome them back to their own college. And we have also the presence of our student leaders of 2019-20. So they have been really good. Basically, so when we conceive of an educational institution, so we are all, on the one hand, we are teachers there. So on the other hand, we have got students. And I have always felt that students are the breath of the college. They are the main spirit of the college. College is always for them. They are the real pillars of education. We are simply to serve them, to give them direction, to teach them, to tell them what do they do, to make them realize their potential. So basically, association of those four office bearers, Lakshit, Apurv, Rajat, and one more. Lakshit, Sahil. Sahil. So they have been wonderful students, and we together have been able to make it possible. It has been a very peaceful, very disciplined kind of academic session that we had because of the total collaboration of all these elements which make this educational institution. So far as the young freshers who have joined in, their parents, they are also trying to seek some kind of information about this institution so that they are able to choose the best educational institution for their wards. So I hope and pray that each one of them is feeling well. They have been able to cope with this issue of COVID-19. It's a new kind of reality. It is really unprecedented. We all have been going through horrid times, and these tough times have got their positive sides as well. Education is going through some kind of transformation. We are also trying to reinvent ourselves in a different way.
We have been using a lot of technology to reach out to the students. We are finding out new ways and means to keep the process of education, the process of learning going on. So, I mean, the young students, so we feel a lot for them. They have never witnessed anything like that. Rather, it's also new to we people. We too have not been able to confront this kind of reality at any level of our, I mean, existential kind of times. So it's a new thing. But now the results are out. They are again full of hope. They have to join institutions. They have to look for their career. They have to look for the future. And we are also gearing up for everything in every possible way to start the process again. So ultimately, this COVID-19 is going to throw up a new challenge for we people. And today, as we all know, I mean, the teachers from DSW, they were supposed to join some other program. So we have got a 5-day or 6-day, 1 week program for our own teachers so that we are able to equip them, update them about the use of skills. And so whenever the moment comes, whenever this education sector is unlocked, which is going to be very soon because the university is already coming up with a notification to start the admission process. So within 1 month, I think, so online admissions are going to take place. So once that happens, we won't like to be left behind. We won't like to be, I mean, found wanting in anything. So even if times continue, even if this period of COVID-19 and its I mean, damaging dimensions, it continues. So we should be ready with our equipment, with our technology to reach out to the students. And it is not going to be that way that rich, I think, the kind of things we have in the colleges where students come to the college, they make all kinds of fun, live together, learn from their peers, some kind of personal relationship with the teachers. So all that thing is going to be missed. But one thing that is not going to be missed is the academics. So we are going to ensure that when the new session begins, we people are able to impart information, knowledge about curriculum, about their courses. So on that count, so far as academics is concerned, so far as preparing them for the final onslaught in examination is concerned, we are going to be there. So that is something that we have planned out, I mean, during the onset of this new session. But so far as DAV is concerned, so basically my idea is not to, I mean, restrict myself to DAV alone, but DAV is a unique institution in a way because people may not realize it. Dr. Deepti have just, I mean, conveyed some part of it. So when the students enter the college, the line that they first visualize on the walls of the college is, stop not till the goal is reached. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. That is a famous line of Vivekanand. So that is what we prepare them for. So life is a continuity. So education can in spatial and geographical terms. So it is a continuous process. It is basically the realization of the self. It is a kind of self-discovery. Every one of us has got a seed inside. We have got a beat inside. So only thing is that we have to realize that beat. We have to realize that potentiality. We have to allow that seed to grow into a big banyan tree. And we at colleges, especially at DAV College Chandigarh, we have always thrived in doing that. We give that kind of fertilizer, that kind of watering, that kind of nurturing, that kind of caring, so that that seed that is already there in each one of us. It has not to be dug out from anywhere. It has not to be gathered from anywhere. We people, in fact, we don't do anything beyond that. So we just try to nurture the potential, the energy, the seed, and try to unfold it so that you grow into a beautiful human being. And ultimately, I mean, success
whatever we call success, because this modern generation tries to look at success in terms of monetary gains at the end of the career. When they are able to find some job somewhere, they feel that we have succeeded in life. But to me, that is not success. Success lies in something else. Success is an internal thing. So when you are able to realize yourself, when you live according to your own conviction, when you feel that I have been able to justify myself, so when you reach that level of self-content and self-satisfaction, yes, I have done it. So that is the core of success. It doesn't lie in externalities. You may gain a lot of power, somebody may become very rich, somebody may find a lot of good things happening around him or her. So they may land up somewhere earning big bucks at the end of the day after their education. That is simply one part of it. That is simply one part of it. But ultimately, it is the inner flowering. So we have to try to create those conditions. And that is what we do in this college. And life is simply not about one dimension. It is not singular in nature. It is multifaceted. If we look within, we find that we have got various manifestations, various kind of, जैसे को वृक्ष होते हैं, किसी में से कोई खुशबू निकलती है, किसी में से कोई खुशबू निकलती है, तो हम सब भी लोग, we are all different. So we have got different possibilities lying inside us. और हम सब की कोशिश होती है कि जिस डायमेंशन में कोई बच्चा जाना चाहे, हम उसको उस दिशा में फलने दें, फैलने दें, खुशबू बिखेरने दें, और वो बच्चा अपनी खुशबू के मुताबिक, अपनी इंटरनल जो उसकी एक वो उसके अंदर एक खुशबू है, उसके साथ आगे बढ़ता रहे. So that has been the basic thrust of education at DAV College, Chandigarh. So because the name is DAV, so it has a special significance. DAV means Dayanand Anglo-Vedic. Now Dayanand stands for something rich in the past, because past is not dead. We all carry the past. Dayanand's famous call was going back to the Vedas and Upanishads. वेद एंड उपनिषद जो हैं, मुझे लगता है कि अब तक जिन लोगों ने भी पढ़े हुए हैं, वो ये एहसास करते हैं कि richest wisdom of living lies in Vedas and Upanishads. We have tried to retrace that rich wisdom and carry that along with us, whatever is good in that. But along with that, we have to look at the Anglo factor. Dayanand, Anglo-Vedic. Science. Because Vedic knowledge believes in the fact that life is an evolutionary process. It is not a stagnant phenomenon. ये रुकती नहीं है कहीं, ये बढ़ती है और आगे और आगे और ऊंचा. It's a continuously growing tree. ऐसा वृक्ष है जो लगातार फलता है, बढ़ता है और ऊंचा होता है. तो ये जो दोनों की दोनों एलिमेंट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस. वैदिक फिलॉसफी में एक जीने की जो कला है, उसका जिक्र भी आता है. साथ साथ ये भी आता है कि जिंदगी बढ़ती है आगे और खूबसूरत होती है और ये वृक्ष ऊपर होता है. उसकी जो क्वेस्ट है, क्योंकि ये नेचर चारों तरफ जो हमारे है, ये अंधेरा है. हमारी जो बुद्धि इतनी नहीं है कि हम इसके अंदर झांक सकें. हमें तो थोड़ी सी दूर तक दिखाई देता है. लगातार कोशिश होती है कि इसकी जो तहें हैं उनको हम खोल सकें. लगातार कोशिश होती है उसकी लेयर्स के अंदर झांक सकें, और ताकि हमारी जो जिंदगी है, ये जो एग्जिस्टेंस है, ये और खूबसूरत हो सके और एनरिच हो सके. लेकिन एक चीज जो हमारी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस की स्पेशल जो चीज होती है, जिससे हम कभी कहीं कट ऑफ हो गए हैं, और शायद हो सकता है ये जो आज का जो कोरोना वायरस का जो सारा आइडिया है, ये भी लगता है उसका कॉन्सिक्वेंस हो. शायद दवाई ढूंढने पे तो लगे हुए हैं हम लोग, लेकिन ये हुआ क्यों, उसकी तरफ कम झांकते हैं. वो जो पार्ट है, वो ये एक रियलाइजेशन है कि मैन इज ए वेरी स्मॉल एंड सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ दिस वाइडर कॉस्मिक रियलिटी. So that kind of
अंडरपिनिंग, अंडरलाइंग फैक्ट अबाउट द रियलिटी ऑफ नेचर कि हम एक छोटे से कीटाणु हैं सारे ब्रह्मांड के. सो दैट ह्यूमिलिटी, दैट रियलाइजेशन that man is a small expression, a small manifestation, and this world is a connected reality. ये जो एक रियलाइजेशन है कि हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक हैं लार्जर लेवल पे. आजकल तो साइंस भी इस चीज को लेती है. स्टीफन हॉकिंग की सारी के सारे जो हिस्ट्री ऑफ साइंस आप देखो तो उसके अंदर भी आजकल साइंस भी कहीं ना कहीं यहीं पे पहुंची है कि ये जो सारा का सारा जो कॉस्मिक प्ले है ये बेसिकली क्वांटम फील्ड है. और ये जो हमारे बॉडीज हैं बेसिकली इट इज एन कंडेंसेशन, इट्स अ मास ऑफ दोज क्वांटम एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं. सो व्हेन वी आर नॉट देयर दोज क्वांटम गेट इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये जो हमारा छोटा सा पार्ट है ये सब जुड़ा हुआ है. हाँ, एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा हुआ है, हम सारी कुदरत से जुड़े हुए हैं, हम नॉन ह्यूमन यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं. एक वृक्ष को भी काटते हो तब भी हम पे असर पड़ता है, किसी नदी को हम खराब करते हैं तब भी हम पे फर्क पड़ता है, और यदि हम किसी जमीन को केमिकल डाल के उसका खराबी करते हैं तब भी फर्क पड़ता है. आज हम क्लाइमेट चेंज की बातें करते हैं. क्लाइमेट चेंज की वजह से शायद ये सारा जो वायरस है, it may be the consequence of that fraud that we played with nature, maybe because there is an imbalance somewhere. उस imbalance के अंदर से हो सकता है हम लोग ये जो हमारी बैलेंस खत्म हुआ है ये वायरस आते हैं. because everything happens because of certain kind of determinism. There is a cause for everything and we may be the cause because we have forgotten that ultimate truth that life is an interconnected thing. हम ही नहीं है, सब कुछ है. सो इट इज द रेस्पॉन्स. सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. आपका म्यूट हो गया है सर. कितने देर से जी? जी सर. नहीं अभी सर, अभी जस्ट फ्यू सेकंड्स बैक. सो वी हैव टू हैव दिस रियलाइजेशन दैट दिस इज एन इंटरकनेक्टेड वेब ऑफ लाइफ. जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, ये दुनिया ऐसे है. और इस तरीके की रियलाइजेशन में से हमें एक मोहब्बत निकलती है. आजकल तो दुनिया लड़ने लड़ाने की बातें चारों तरफ हो रही हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसी दुनिया दे के जाएं, जिस ऐसी दुनिया का सपना उनके अंदर पैदा करें जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें हमारा एक दूसरे से जुड़ाव हो, हम एक दूसरे के साथ मिलके हंसते हंसते जिंदगी को जी जाएं. सो दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन इज समथिंग दैट DAV tries to teach because we believe in the philosophy of the Vedas and Vedas have emphasized that kind of reality. उसी में से हमारे जो पुरानी जो कलाएं हैं जीने की, जिसमें योग आता है, जिसमें आयुर्वेद आता है, या जिसमें हमारी पूरी कल्चरल एक फिलॉसफी आती है, उस चीज पे हमारा हवन का कंसेप्ट है. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ DAV which is not part of any other institution. So along with that, naturally, as I said, that science, growth, evolution of human mind, taking somebody to some other level, so that is something that happens. इसके अलावा इसमें DAV के अंदर हमारे जो थोड़े यूनिक फीचर्स हैं जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेंगे, वो मैंने जैसे बताया कि ठीक है, एजुकेशन इज वन पार्ट ऑफ इट. वी टीच. हमारे जो बच्चे हैं, हमारे आज 4 अलुमनाई भी हमसे जुड़े हुए हैं, वो आप लोगों से शायद बताएंगे. मैंने शुरू में बताया भी है कि जितना कंट्रीब्यूशन DAV चंडीगढ़ का है इस नेशन बिल्डिंग में, मुझे नहीं लगता कि किसी और कॉलेज का इस देश के अंदर इतना कंट्रीब्यूशन रहा होगा. बच्चे नए हैं, अभी हमारे कॉलेज में आएंगे तो आके हमारी दीवारों पे देखेंगे वो तस्वीरें लगी हुई हैं. हमारा जो एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको हम शौर्य भवन बोलते हैं, और ये शौर्य भवन हमारा उन शहीदों के नाम है जो इस कॉलेज से निकले, जिन्होंने इस देश के लिए सैक्रिफाइसेस किए और हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से नवाजे गए.
बहुत बड़ी संख्या उनकी है। विक्रम बत्रा का नाम सुना होगा, परमवीर चक्र जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है उससे लेके सेना मेडल तक, एवरी ईयर वी हैव गॉट समबडी। मतलब दिस इज द रिचेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समबडीज प्रेजेंस एज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमारे जो एनसीसी के विंग्स हैं तीनों, नेवल विंग है हमारे पास आर्मी विंग है, हमारे पास एयरफोर्स का विंग है। हमारे लड़के और लड़कियां, लास्ट ईयर भी हमारी 2 बच्चियां, सो दे हैव बिकम आर्मी ऑफिसर्स। वन ऑफ देम हैज गॉन इनटू एयरफोर्स एंड द अदर हैज ज्वाइंड आर्मी एज एन ऑफिसर। लड़कों की तो बात ही नहीं। तो ये जो एनसीसी हमारी है, बिकॉज ऑफ द huge contribution made to the armed forces by DAV college, a lot of students who want to get into that mode of life, जो armed forces को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे कॉलेज को लगातार कोशिश करते हैं कि यहाँ पे उनके एडमिशन हो जाए, एनसीसी में उनकी एडमिशन हो जाए, और यहाँ से फिर जब वो कहीं इंटरव्यू में निकलेंगे, जब कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं डीएवी कॉलेज से आया हूँ, तो आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स इंटरव्यू पे बैठे होते हैं उनको पता ही है कि somebody has come from DAV college, it has come from that kind of college which has got a rich history of contributing to the defense forces or safety and security of the nation. They have got a huge contribution that they have made. So keeping that in mind, ये हमारा जो ट्रेडिशन है इसको हम बिल्कुल प्रिजर्व करके रखते हैं, इसको और आगे लेके जाना है हमने। और ये जो आर्म्ड फोर्सेस के लिए हर वक्त अभी 26 को कारगिल दिवस है, और कारगिल जो युद्ध हुआ था उसमें विक्रम बत्रा से लेके और जो कई ऑफिसर्स थे जिन्होंने अपना सैक्रिफाइस किया और पाकिस्तान को वहां से भगाया, वो हमारे कॉलेज के विद्यार्थी थे। अभी पीछे चंद ही दिनों पहले पाकिस्तान के साथ जो स्किमिशेस हुई थी, उसके अंदर एक हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। उसको चलाने वाला जो पायलट था, ही वाज फ्रॉम आवर कॉलेज, एंड उसको हमने, पेरेंट्स उसके चंडीगढ़ में ही है, तो उनको बुला के ऑनर भी किया। तो इन सब शहीदों के नाम से हमने पिछले वक्त में कुछ वृक्ष भी लगाए हैं। कभी कॉलेज में आओगे तो उन वृक्षों के ऊपर इन महान सपूतों की आपको एक प्लेट लगी मिलेगी। ये वो सब लोग हैं जिनको बहुत बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं फॉर डूइंग वंडरफुली वेल इन द बैटलफील्ड। तो ये डायमेंशन है। इसके अलावा जितनी भी डायमेंशंस आपकी होंगी, फॉर एग्जांपल मैं 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। एक आगाज क्लब है हमारा, थिएटर का क्लब है। उस थिएटर के क्लब का जो आपकी बॉम्बे की बॉलीवुड है, उस बॉलीवुड के अंदर पूरा डीएवी की एक प्रेजेंस है, डीएवी कॉलेज की प्रेजेंस है। तो वी हैव गॉट ए बिग चंक ऑफ पीपल, 30-40 स्टूडेंट्स, जिसमें जिसको लीडिंग फिगर उसमें आयुष्मान खुराना है। रोचक कोहली, फिल्म इंडस्ट्री में जितने भी खूबसूरत सॉन्ग आजकल आ रहे हैं, उसका सबका म्यूजिक कंपोजर आपको रोचक कोहली मिलेगा। आयुष्मान खुराना को आप सब जानते हो। ये सारा का सारा ग्रुप, अभी 3-4 डेज बैक बॉलीवुड से 5 लोग हमारे पास आए, डॉक्टर दीप्ति भी वहां पे थी। तो उन्होंने कहा कि सर, हम ये जो मेमोरीज है हमारे डीएवी की, तो उनको फिल्म इंडस्ट्री तक लेके जाना चाहते हैं। एक फिल्म का सॉन्ग है जो हम कंपोज करने लगे हुए हैं, उसमें रोचक कोहली तो अभी नहीं आया था, वो आएगा जब इन्होंने अपने यहाँ पे शूटिंग करनी होगी। इसके अलावा जो दूसरे गोपाल शर्मा, गुरप्रीत सैनी, मतलब दे आर द हाईएस्ट पेड म्यूजिक कंपोजर, लिरिसिस्ट, एक्टर्स, डूइंग ग्रेट वर्क। अभी पंजाबी की फिल्म आई है, कोई पुनीत चड्ढा ने क्रिएट किया, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। जितने सिंगर्स हैं उसमें से 50% दे हैव बीन स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज। तो वो आए 5-6 दिन पहले, सो दे आर गोइंग टू शूट अ सॉन्ग इनसाइड द कॉलेज। दीप्ति जी को कहा कि हमने लाइब्रेरी उसको उस दिन चाहिए, लाइब्रेरी को सैनिटाइज हमने करवाया। वो इधर उधर 3 दिन से यहाँ पे घूम रहे हैं कि कहाँ पे उनके कैमरास लगेंगे। तो 20 people from Bollywood, they are going to land up in Chandigarh DAV because of their roots। उनको ये लगता है कि ये आगाज जो डीएवी का क्लब है थिएटर का, इसमें से हमने हमारा जो बीज था, वो फूटा जिसकी वजह से हम इतने बड़े हुए, इट हैज हैपेंड इन दिस डीएवी कॉलेज।
वी हैव गॉट 2 डांसिंग क्लब्स, और यदि वो उनके डांसेस देख लो, एक लास्या और एक डांसिंग शैडो, ये 2 क्लब्स हैं, पैरेलल क्लब्स हैं हमारे, जिसमें वेस्टर्न डांस, क्लासिकल डांस, फोक डांसेस। हमारे बच्चे आजकल जो टीवी पे जितने भी ये प्रोग्राम्स आते हैं जहां पे डांस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, दे हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दोस। सिंगिंग क्लब, वी हैव गॉट अ पिक्सल क्लब. Pixel Club is a photography club, or I mean about 50 students who have got a passion for photography. They are part of that club, or we I mean organize exhibitions of those photographies. आप यदि उस फोटोग्राफी को देख लो बच्चों की, मतलब you will be absolutely amazed, because I have been part of this college for the last 2 years, और 2 साल में मुझे गदगद हो जाता हूं मैं जब अपने बच्चों की क्रिएटिविटी देखता हूं. दिस इज रियली मार्वलस. वी हैव गॉट अ फैशन एंड मॉडलिंग क्लब, एंड वी हैव बीन द विनर इन नॉर्थ इंडिया. हमारे बच्चे बच्चियां, दे पार्टिसिपेट इन फैशन शोज, दे गो अप टू बॉम्बे टू compete with the best of the best. पिछली बार हमारा जो फैशन एंड मॉडलिंग सोसाइटी है उसके अंदर लगभग 20-25 बच्चे हैं जिनको वो शौक है. जो उन्होंने काम किया, जो उनके कंपटीशन थे, जो उन्होंने अवार्ड जीते, सो इन वन ऑफ द फंक्शंस दे हैव बीन एबल टू इवन विन द कैश प्राइजेस व्हिच मेक देम गो. उस कैश प्राइजेस से वो अपने कपड़े सिलवाते हैं, और कॉलेज जितनी मदद कर सकता है उनकी करता है, उनको गाइडेंस देता है, टीचर चारों तरफ होते हैं. सारे नॉर्थ इंडिया के अंदर दैट ग्रुप हैज बीन कंसिडर्ड द बेस्ट ग्रुप इन फैशन एंड मॉडलिंग. वी हैव गॉट टेक्नोमाइंड क्लब. टेक्नोमाइंड आजकल दौर चाइना के साथ ये कन्फ्रंटेशन हो गया, उसके बाद वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सेल्फ रिलायंस इन टेक्नोलॉजी. और हमारा भी बच्चा एक आई वाज एब्सोल्युटली हैप्पी टू नो कि आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए स्टूडेंट, किस टेक्नोमाइंड ग्रुप से था वो कहता सर मैंने एप्लीकेशन बनाई है और मैं आप कॉलेज में आना चाहता हूं, तो मैंने वो एप्लीकेशन आपको दिखानी है. मैंने कहा बेटा वो किस चीज के बारे में है? कहता है सर वो ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप हमारे सारे बच्चों को पढ़ा सकते हो. विद द हेल्प ऑफ दैट एप्लीकेशन यू कैन गो आउट, टीचर्स हैं, दे कैन यूज दैट एप्लीकेशन एट कॉलेज लेवल और बच्चों को पढ़ा सकते हो. मैं कहा बेटा आओ. आया, उसने समझाया, तो ही स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट. सर्टन फ्लॉज है. ये टेक्नोमाइंड नई जो इनोवेशंस हैं, नई क्रिएशंस हैं, हमारी जो लाइफ जो चारों तरफ है, चाहे कॉलेज के अंदर चाहे बाहर, उसको ईज आउट कैसे कर सकते हैं, उसको आसान कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. सो कॉन्टिन्यूअसली वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दैट काइंड ऑफ थिंग. हमारे स्पोर्ट्स में मुझे लगता है, तो दैट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट डीएवी कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज इन स्पोर्ट्स. यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे जो एक ट्रॉफी होती है, तो दैट वी हैव बीन द विनर ऑफ दैट 30 times. लास्ट टाइम अगेन वी वॉन इट, शादीलाल बत्रा ट्रॉफी. तो वो जो ट्रॉफी है दैट इज आवर्स. ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने सारे इंडिया की यूनिवर्सिटी की जो चैंपियनशिप जीती है, पंजाब यूनिवर्सिटी, बिकॉज it has got all these colleges as part of the university. We are part of that extension counter of the university. 60% जो स्पोर्ट्स मैन एंड वीमेन है, they are from our college representing Punjab University, which I mean got the first position throughout India. So that kind of achievement we have got, that kind of great contribution we have been. बहुत सारे नाम हैं, कपिल देव, युवराज, योगराज, नीरज. ये शूटिंग है, शूटिंग के अंदर इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे हैं वो हमारे कॉलेज के बच्चे हैं. ओलंपिक्स में जाने वाले बच्चे हमारे. कोई कॉलेज ऐसा नहीं होगा जिसमें से 5 अर्जुना अवार्डी हो. 5 अर्जुना अवार्डी. जस्ट लास्ट ईयर बलवीर सिंह शायद नाम है बच्चे का, ही इज फ्रॉम मोहाली. फुटबॉल के अंदर ही इज कैप्टनिंग द इंडियन टीम इन फुटबॉल टीम ऑफ इंडिया की, जो उसको कैप्टन करता है वो गोलकीपर है. ही गॉट अर्जुन अवार्ड. 2 बच्चों को हमारे यहां से जो पढ़े हुए बच्चे थे उनको अर्जुन अवार्ड मिला एक बार में, आउट ऑफ
18 top sportsmen and women who got Arjun Award last time, 2 were from our college. So we have got a huge legacy, a very rich tradition in sports. NCC, sports, NSS, और NSS के साथ उसी NSS की जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे हमारा एक बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स है, लगातार एक समाज को जगाने की कोशिश करता है। समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं, आसपास के गांवों में जाके, वी हैव बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट NSS यूनिट फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे कॉलेज की NSS को फर्स्ट पोजीशन देती रही है। इसके साथ इसमें से एक नव संकल्प, हमारे बहुत ही खूबसूरत आइडिया बच्चों ने निकाला। हमारी एक बच्ची थी जो नाउ शी हैज गॉन टू USA, उसने एक अलग एक आइडिया निकाल के लेके आई कि लेट अस क्रिएट ए न्यू क्लब, नव संकल्प, विच इज हेडेड बाय आवर कॉलेज, बट नाउ इट हैज एक्सटेंडेड टू द एंटायर टाउन। दूसरे कॉलेजेस के बच्चे भी लेने शुरू कर दिए। उस नव संकल्प ने आज तक 75 लाख लोगों से कलेक्ट करके, they go to the markets, they enact a play, they do theater there, they try to mobilize people to that cause, they try to get collection from the people। और पिछले 5 साल में 75 lakh rupees, it's a huge amount, they collected from the people and they have been giving to the poor people who come to PGI for treatment। That is the sole motive of that। वहां पे वो जो बाहर बैठे होते हैं PGI से, जिनके पास पैसे नहीं होते किसी ऑपरेशन के लिए, they bring them to the college, we organize a function and we give some amount out of the collections made by Nav Sankalp। So this beautiful expansion of humanity, so that is happening at DAV। जहां तक ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, कई बार हम ये सोचते हैं कि सक्सेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन लाइज इन द थिंग्स दैट पीपल अचीव एट द एंड ऑफ द डे। जितनी ब्यूरोक्रेसी है, आप पंजाब हरियाणा के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, हर तीसरा या चौथा आदमी जो IAS ऑफिसर है, आपको मिलेगा कि ही हैज गॉट हिज रूट्स इन DAV। आपके जितने IPS ऑफिसर है, हर चौथा या 5वां आदमी आपको मिलेगा यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में खास तौर पे कि मैं DAV से पढ़ा हुआ। PGI के डॉक्टर्स में हर 7वां, 8वां, 10वां डॉक्टर आपको मिलेगा, आई गॉट माई एजुकेशन फ्रॉम DAV। प्री इंजीनियरिंग उस वक्त होती थी या प्री मेडिकल होती थी, 2 साल की, +2 होती थी, सो आई डिड इट फ्रॉम हियर। जितने बड़े बड़े इंजीनियर्स हमारे बाहर पे बैठे हैं, हैरान हो जाओगे कि जो फ्लिपकार्ट है, जिन लोगों ने फ्लिपकार्ट बनाया, वो बंसल ब्रदर्स, दे आर फ्रॉम दिस कॉलेज। अभी जस्ट 2 days बैक आई गॉट ए कॉल फ्रॉम समबडी कि एक ब्लैक फ्राउन या समथिंग, इट्स अ बिग कंपनी इन USA, देन आई चेक्ड इट फ्रॉम गूगल, उसका जो CEO है वो हमारा DAV से पढ़ा हुआ है। तो वेदर इट इज द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, whether it is the world of bureaucracy, whether it's in economic affairs, Flipkart, corporate world, whether it's in social, cultural sphere, बहुत सारे सिंगर्स हैं जो पंजाब में आजकल गा रहे हैं, they have got their roots here। तो ये सारा का सारा कंट्रीब्यूशन DAV का रहा है। तो मैडम दीप्ति का फोन आ गया, वो बच्चे आपस में बात करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। हम तो अपने बारे में अच्छा बोलते ही हैं। तो जितने भी ये बच्चे हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, उनके पेरेंट्स जुड़े हैं, या आप जो भी जुड़े हैं, इनके ज़रिए आप और लोगों से बात करोगे। तो वी आर रियली वेटिंग फॉर यू टू कम टू दिस कॉलेज। इट्स अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। अभी जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है, हमारे देश की गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो सारी जितने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया के अंदर, उसकी रैंकिंग करती है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, डेटा बेसिस पे करते हैं वो। तो उसने DAV चंडीगढ़ को बेस्ट कॉलेज, नॉट ओनली इन चंडीगढ़ बट थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया। दिल्ली के कॉलेजेस हैं कुछ जो हमसे आगे हैं, दिल्ली के उन कॉलेजेस को छोड़ के UP, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इन 5-6 स्टेट्स में DAV चंडीगढ़ हैज बीन रैंक्ड
द बेस्ट कॉलेज इन 5 स्टेट्स में। बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया कि मैं तो अभी 2 साल से ही हूँ, तो मैं ज़्यादा क्रेडिट इस इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में ज़्यादा नहीं ले सकता। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ अपने साथियों के साथ। अल्टीमेट क्रेडिट इन टीचर्स को जाता है, हमारे पुराने प्रिंसिपल्स को जाता है। और ऐसे से यहाँ पे ये तस्वीरें लगी होती हैं हमारे सामने, जब इनकी कहानियाँ सुनते हैं। ये सन्यासी लोग थे, टीचर्स और प्रिंसिपल्स, जिन लोगों ने ये आज से 70 साल पहले कॉलेज खड़ा किया था, वो सन्यासी लोग थे। समाज में जा जा के, भीख मांग मांग के इतनी खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी की हुई है। कॉलेज में आओ आप, तो आपको पता लगेगा कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे कॉलेज में आपको मिलेगी। लाइब्रेरी हमारी, मुझे नहीं लगता नॉर्थ इंडिया में कोई इससे खूबसूरत लाइब्रेरी होगी। और उस लाइब्रेरी के अंदर, जिसमें दीप्ति मैम खुद संभालती हैं उस लाइब्रेरी को, जो लिटरेचर हमारे पास है, उस लिटरेचर को हमसे लेने के लिए सारे वर्ल्ड की एजेंसीज कोशिश करती हैं। जो मैन्यूस्क्रिप्ट हमारे पास है, बहुत ही प्राचीन 2-2, 4-4 साल पहले, 4-4 हजार साल पहले जो लिटरेचर लिखा गया था पुरानी लैंग्वेजेस के अंदर, वो लिटरेचर हमारे पास है। उसको आज हम कंप्यूटर्स के अंदर प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। पत्तों पे जब लिखा करते थे, वो पत्तों वाला लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट भी हमारे पास है। तो वी हैव गॉट द बेस्ट लाइब्रेरी, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट आइडिया ऑफ एजुकेशन। क्योंकि डीएवी का जो आइडिया ऑफ एजुकेशन है, दैट इज जस्ट टू सर्व द पीपल। देयर इज नो अदर पर्पस। वी आर नॉट हियर टू मेक मनी, वी आर नॉट हियर टू एक्सप्लॉइट एनीबडी। इट्स नॉट ए काइंड ऑफ ऐसा नहीं है कि हम कोई सामान बेचने के लिए यहाँ पे हैं। ये कुछ समाज के सन्यासी लोगों की संस्था है, उसमें सेवा सेवा सेवा, एक नया इंसान बना। माइक हो गया सर, आपका वो म्यूट हो गया सर, माइक प्लीज अनम्यूट कर दीजिए जी। ये मैंने कहा कि ये डीएवी सन्यासियों की संस्था है। डीएवी में कुछ लोग सिर्फ सेवा भाव से लगे हुए हैं। देयर इज नो अदर पर्पस। वी आर हियर जस्ट टू सर्व द सोसाइटी। एक खूबसूरत समाज हो, एक अच्छा समाज हो। सर अगेन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हम अपनी जो अंदर के जो वो हमारी पोटेंशियल है, उसको रियलाइज करते हुए अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, इस सारी दुनिया के लिए एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया ऑफ लाइफ क्रिएट कर सकें, इसी मिशन के साथ हम सब लगे हुए हैं। हॉस्टल्स हमारे पास बहुत सेफ हैं। तो हमारे पास यदि बच्चा आपका आता है, तो मुझे वैसे तो खुद ही बच्चे बताएं तो अच्छी बात है, ये पुराने तो हम उनके मतलब वी शैल बी रिप्लेसिंग एज पेरेंट्स। तो उनको, जो हमारे पास बच्चे हैं, वो आप लोगों को बता सकते हैं। सो वो हमारे लिए ऐसे ही हैं जैसे जो पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे होते हैं। वी शैल बी गिविंग प्रॉपर केयर टू ईच वन ऑफ देम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही आभारी हूँ अपने DSW डिपार्टमेंट का, हमारे एसोसिएशन जो स्टूडेंट एसोसिएशन के बच्चे हैं, अल्यूमनाई हैं, और जो भी लोग जुड़े हैं, तो उन सब का मैं बहुत आभारी हूँ वो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और मुझे इतना टाइम दे दिया सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच दीप्ति जी, थैंक यू किरण। नाउ इट्स ऑल ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir, for your enlightening words as ever. Thank you, sir. Thank you once again. May I request Dr. Kiran ma'am, please, to take over. Thank you, Deepti.